Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Indian Desert. The Great Indian Desert, it means the Thar Desert, is a desert located in western India. It lies mostly in an Indian state of Rajasthan and extend into the southern portion of Haryana and Punjab states and into northern Gujarat state. So this is the Great Thar Desert. Okay, western India के western part में located है and the Thar Desert is bounded on the northwest by the Satluj River. Northwest में इसके Satluj River है and on the east by the Aravalli Range, on the south of the salt marsh known as Run of Kutch and on the west by the Indus River. तो इस तरीके से जो थार डेजर्ट है वो पूरा सराउंडेड है. The desert results from the dryness of the prevailing monsoon wind which do not bring sufficient rain to keep the region moist. और क्यों ये डेजर्ट जो है ड्राई है, क्यों ये सूखा है इतना? क्योंकि यहाँ पर मॉनसून जो है वो एंटर नहीं कर पाता, वो अपने साथ इतनी बारिश लेकर नहीं आ पाता कि यहाँ पर रेनफॉल हो सके. द डेजर्ट हैज़ अ वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड एंड सैंड ड्यून्स ऑफ डिफरेंट टाइप. यहाँ पर आप देखोगे दूर दूर तक आपको सैंड और सैंड ड्यून होता है रेत के पहाड़, ठीक है, दूर दूर तक आपको सिर्फ सैंड ही सैंड दिखाई देते हैं. Sand dunes are the sand hills that keep changing places by the action of wind. ये देखो आप, sand dunes क्या होती है? Sand dunes होती है sand की hill, जब हवा चलती है वो अपनी पोजीशन जो है, अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर देते हैं क्योंकि रेत उसके साथ उड़ जाता है, राइट? Now the amount of annual rainfall in the desert tract is generally low. Sometimes no rain falls year after year. कई बार तो सालों साल तक बारिश होती ही नहीं है. People living here do not get enough water even for drinking. यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको पीने तक का पानी भी नहीं मिल पाता. The desert have no permanent river. कोई permanent river नहीं है यहाँ. Small streams which are formed during the rainy season soon get dry. छोटी छोटी स्टीम्स जो बन जाती हैं रेनफॉल के टाइम पर वो बहुत जल्दी ही सूख जाती हैं. The scarcity of water has kept this region barren. और पानी नहीं है इसीलिए ये रीज़न क्या है? barren है, यानी कि बंजर है, यहाँ पर कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकती. The desert has an extreme type of climate. क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीम. एक्सट्रीम का मतलब होता है समर में बहुत ज़्यादा हॉट और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड. Dust storms and dust raising winds are very common in the month of May and June. धूल भरी आंधियाँ चलती हैं मई एंड जून में. एंड इन विंटर द डेज आर प्लीजेंट बट नाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं. फ्रोस्ट कुड बी फॉर्म, कि वहाँ पर फ्रोस्ट जम जाती है, ठीक है. Now the desert vegetation is mostly herbaceous or of stunted scrub. यहाँ पर आपको ज़्यादा वेजिटेशन नहीं मिलेगी, दूर दूर तक सिर्फ आपको झाड़ियाँ स्क्रब वगैरह ही दिखाई देंगी. Trees like palm, कीकर, बबुल and thorny cactus plants grow here. यहाँ पर सिर्फ कांटेदार पेड़ या स्क्रब ही ग्रो हो सकते हैं जैसे कि पाम, कीकर, बबुल या फिर thorny cactus. And most shrubs have long root and no leaves. At some places where underground water comes to the surface, cluster of tall palm trees and some grasses grow. जहाँ पर underground water available है वहाँ पर आप देखोगे कुछ थोड़ी बहुत vegetation जो है वो ग्रो कर पाती है. एंड सच ए टाइप ऑफ फर्टाइल ट्रैक्ट इन अ सैंडी डेजर्ट इज नोन एज एन ओएसिस. और ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अवेलेबल होता है दूर दूर तक सैंडी डेजर्ट में, उस जगह को नाम दिया जाता है ओएसिस. Our government has started a very big irrigation project called the Rajasthan Canal Project. हमारी गवर्नमेंट ने एक शुरुआत की है इस थार डेजर्ट में पानी ले जाने के लिए, इरिगेशन के लिए, जिस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट. It is built with the aim to convert the part of Thar Desert
from wasteland to agriculture productive area. Water is being brought from the Satluj river and its tributaries by the Indira Gandhi Canal. और यहाँ पर एक रिवर शुरू की जाने वाली है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल, जहाँ पर सतलुज रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से पानी लाया गया है. सो दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, और इसीलिए राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट कैनल भी कहा जाता है. Indira Gandhi Canal Project is a major setup to reclaim the Thar Desert and check spreading of desert to the fertile areas. ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि इससे आप चेक कर सकते हो कि थार डेजर्ट को आगे मतलब ज़्यादा एरिया को डेजर्ट में कन्वर्ट करने से हम रोक सकते हैं. एंड द कैनल हैज़ ट्रांसफॉर्म द बैरन डेजर्ट ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इनटू रिच एंड लश फील्ड. और इस प्रोजेक्ट से जैसलमेर को काफ़ी फ़ायदा हुआ है. जैसलमेर जो कि एक बैरन डेजर्ट हुआ करता था, बैरन डेजर्ट का पार्ट था, अब वो रिच एंड लश फील्ड वहाँ पर देखे जा सकते हैं. Crops of mustard, cotton and wheat now flourish in the western region of the state where nothing but sand ruled for years. जहाँ सालों साल तक सिर्फ आपको सैंड ही सैंड दिखाई देती थी, जैसलमेर में वहाँ पर अब आपको मस्टर्ड, कॉटन और व्हीट की क्रॉप जो है वो लहराती हुई दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट. एंड the canal has transformed northern part of Rajasthan into green and greenery, and beside provide water for the crops, the canal would supply drinking water to hundreds of people in the area, and there is a hope that it will enhance the living standards of the people of the state. सिर्फ इरिगेशन के अलावा बहुत सारे लाखों सैकड़ों लोगों तक पानी भी पहुंचाता है इस प्रोजेक्ट ने. एंड द कैमल इज अ वेरी यूजफुल एनिमल इन दिस रीजन. इट हैज़ पैडेड फीट विच इनेबल हिम टू वॉक ईजिली ऑन द लूज सैंड. और कैमल जो है वो बहुत टाइम तक बिना पानी के, बिना फूड के सर्वाइव कर सकता है. सो इस कारण कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है. एंड द मेजर सिटीज ऑफ द इंडियन डेजर्ट्स आर जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर एंड सूरतगढ़. दीज आर ब्यूटिफुल cities and have many historical buildings. Just have a look on the glossary. The first word is desert, a dry open area of land, sand dunes, low hills of sand, oases, a small fertile or green areas in a desert region, usually having a spring or well. Now let us revise the chapter. The Great Indian Desert or the Thar Desert is a desert located in western India. Sand dunes are the sand hills that keep changing places by the action of the wind. And the Thar Desert has an extreme type of climate, and the camel is a very useful animal in the desert region. So this is the chapter बच्चे. Now just have a look on the exercise. First है take the correct options. These are the MCQs. You have to choose the correct option. First है the most useful animal of the desert. अभी आपने पढ़ा most useful animal is camel. सेकेंड मेजर सिटी ऑफ एन इंडियन डेजर्ट. सबसे बड़ी सिटी इंडियन डेजर्ट की कौन सी है? दैट इज जोधपुर. आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ वेरी बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया गया है राजस्थान कैनल, सतलुज कैनल, कोसी कैनल या यमुना कैनल. दैट इज राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट. एंड द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज एक्सट्रीम. एक्सट्रीम मतलब गर्मियों में बहुत हॉट एंड विंटर्स में वेरी कोल्ड. नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड. फर्स्ट है द अदर नेम ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज. और ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम क्या कहते हैं? थार डेजर्ट. ठीक है, इस तरीके से आप ये रीड करोगे एंड फिल द प्रॉपर वर्ड. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज कैक्टस. कैक्टस क्या होता है? अ थॉर्नी plant. Okay. Second है camel. Camel is called the ship of the desert. Third है जोधपुर. जोधपुर क्या है? एक सिटी है राजस्थान की. Next is sand dunes. Sand dunes are the hills of the sand, and oasis a small water pool in the desert. Now next is answer the following question. The first question is where is the Great Indian Desert located? What is the location of Thar Desert? वो आपको लिखना है.
व्हाट आर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होती हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैव, कैसा क्लाइमेट है डेजर्ट का, एक्सट्रीम, व्हाट इज एन ओएसिस, ओएसिस क्या होता है, हाउ हैज़ द इंदिरा गांधी कैनल चेंज द फेस ऑफ द डेजर्ट, कैसे इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट ने कैसे डेजर्ट को चेंज कर दिया है, ठीक है, वो आप लिखोगे। नाउ दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू, टिक द थिंग्स विच कैन बी सीन इन डेजर्ट, डेजर्ट में आप क्या देखते हो, कैक्टस देखते हो, यस, ठीक है, इस तरीके से सैंड ड्यून्स देखते हो, यस, क्या आपको ग्रीन पेड़ दिखाई देंगे, नो, कैमल और इस तरीके की ट्रेडिशनल ड्रेस वो पहनते हैं, यस, तो आप जो डेजर्ट में मिलती हैं चीज़ें वो आप क्या कर दोगे, टिक। नाउ थिंग्स टू डू में आप क्या करोगे, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेस्टिवल्स एंड द फेयर्स ऑफ राजस्थान, द इम्पॉर्टेंट सिटीज, फोर्ट्स एंड पैलेसेस एंड द इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उससे रिलेटेड पिक्चर पेस्ट करनी है कि कौन से मेले वहाँ पर लगते हैं, राजस्थान में कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, वहाँ के फेमस फोर्ट और पैलेसेस कौन कौन से हैं, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, क्या उस प्रोजेक्ट से हुआ है, तो पूरा आपको एक थार डेजर्ट पे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, फाइन। Now know the human value, that is, do you know about the life of Banjaras, Banjaras, that word is related to Rajasthan, ठीक है, यानी कि डेजर्ट में बंजारे जो ट्राइब होती है वो बंजारास इधर से उधर घूमते रहते हैं, to know about them you can ask your teacher or take the help of internet, find out the difficulties that they face in their day to day life, कि बंजारास की लाइफ क्यों मुश्किल होती है, क्या वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, ये आप इंटरनेट पर गूगल कर सकते हो या फिर अपनी क्लास टीचर से डिस्कस करोगे। सो दिस इज द चैप्टर बच्चे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, यू हैव टू रीड इट वंस अगेन एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज योरसेल्फ।